قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، حاضرین گرامی، جادو اور جنات کی حقیقت اور علاج کے تعلق سے بات چل رہی ہے. گزشتہ کل ہم نے یہ معلوم کی کہ جادوگر جنات کو کیسے حاضر کرتے ہیں اور کیسے اپنے قابو میں، اپنے کنٹرول میں کرتے ہیں اور ان سے کیسے کام لیتے ہیں. تو اہل علم نے اس سلسلے میں کئی ایک طریقے بیان کیے ہیں. کل ہم نے پہلا ایک طریقہ معلوم کیے. جنات کو حاضر کرنے اور مسخر کرنے، تابع کرنے کے طریقوں میں سے دوسرا طریقہ ہے کہ جادوگر کوئی پرندہ یا کوئی کبوتر یا کوئی جانور جیسے مرغی یا بکرا جنوں کی طرف سے بتائی گئی خاص شکل و صورت کے مطابق منگواتا ہے کہ کالا بکرا لے کر آؤ، کالی مرغی لے کر آؤ، یا ایسے کبوتر لے کر آؤ. وہ جنات کے سردار جیسے بولتا ہے، جادوگر اسی طرح کا جانور منگواتا ہے اور کہتا ہے کہ اس طرح کے جانور لے کر آؤ. وہ جانور لے کے جاتا ہے. اس جانور کو اس جن کے سردار کے نام پر یا جنات کے نام پر ذبح کر دیا جاتا ہے. غیر اللہ کے نام پر ذبح کرنا شرک ہے. اللہ کے علاوہ غیر اللہ کے نام پر ذبح کرنا شرک ہے. اب یہ شرک ہوتے ہی شیطان خوش ہوتا ہے. شیطان کا جو سردار ہے، جنات کا سردار ہے، وہ خوش ہوتا ہے. خوش ہو کے آپ اس کی مدد کرتا ہے اور یہ شرط رکھتا ہے کہ ذبح کرتے وقت بسم اللہ نہیں بولنا. ذبح کرتے وقت بسم اللہ نہیں بولنا. تو خود بخود یہ اب بسم اللہ تو اللہ کے نام پہ ذبح ہو رہا ہے. اگر بسم اللہ نہیں ہے تو ظاہر سی بات ہے غیر اللہ کے نام پہ ذبح ہو رہا ہے. اور پھر یہ کہتا کہ دیکھو اس کو لے جا کے فلاں کنویں میں ڈال دو. یہ جو کبوتر ہیں، اس کا گوشت، اس کا خون فلاں جگہ پر لیپو. اس طریقے سے جنات کو جیسے چاہیے وہ اپنے اپنے اعتبار سے بتاتے جاتے ہیں اور یہ جا کے اسے کرتے ہیں. یا کسی پرانے کھنڈرات میں لے جا کر اس کے گوشت کو دفن کر دو. مختلف طرح کی چیزیں بتا کر شرکیہ کام کرا کے، شرکیہ تعویذ کرا کر اس میں پڑھتا ہے اور پڑھنے کے بعد اب جنات خوش ہوتے ہیں. اب اس جادوگر کی مدد کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے، وہ آتا ہے. اس سلسلے میں دیکھیے صحیح مسلم میں حدیث ہے، حضرت علی بن ابی طالب سے مروی ہے کہ ایک حدیث میں آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی لعنت ہو اس شخص پر جس نے غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا. غیر اللہ کے نام پر ذبح کرنے والے پر اللہ کی لعنت ہے. اللہ ناراض ہوتا ہے، شیطان خوش ہوتا ہے. تیسرا طریقہ، یہ طریقہ جادوگروں میں انتہائی گھٹیا طریقہ ہے، سب سے گھٹیا طریقہ ہے یہ. اور اس طریقے کو اپنانے سے جنات بہت جلد مدد کرتے ہیں، بہت جلد وہ خوش ہوتے ہیں. اس طریقے کو اپنانے والے جادوگر کی خدمت کے لیے، اس کے احکامات پر عمل کرنے کے لیے شیطانوں کا بہت بڑا گروہ تیار رہتا ہے، اس کے پاس موجود رہتا ہے. کیونکہ ایسا جادوگر کفر، الحاد کے اعتبار سے بہت آگے بڑھا ہوا ہوتا ہے. یعنی کفر و الحاد کے شرک کے بہت چوٹی میں پہنچ جاتا ہے اور یہ بہت بڑا لعنتی کام ہے. کیا کرتا ہے کہ جادوگر غیر شرعی کام کرتا، اور بھی ایسے غیر شرعی کام ہے
उस पर अल्लाह की बहुत सारी लानतें। ऐसे जादूगर कुरान मजीद को जूतों में बांधता है, कुरान मजीद को जूतों के नीचे बांधता है, अपने कदमों तले बांधकर बैतुल खला जाते हैं। जादूगर कुरान मजीद को जूते में बांधकर या अपने पैर के तले बांधकर या कुरानी आयतों को उसकी बेहरमती करके क्या करता है, बैतुल खला जाता है या कुरान के ऊपर पेशाब करता है। नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। अब ये कुफर में हद है। या ये कहता है कि कुरान के जो आयतें हैं इनको उल्टा लिखो, उल्टा लिखो तो माना बदल जाएगा, उल्टा लिखने से माना बदल जाएगा। अल्लाह जो तरतीब जिस एतबार से बोल रहा है उसके अलावा कुछ और हो जाएगा, तो ये कलामुल्लाह के साथ छेड़छाड़ है। अब क्या होता है, चूंकि कुफर में हद से आगे बढ़ गया है, शैतान खुश होता है। शैतान खुश होके अब जादूगर की मदद करता है, बता मैं क्या करना है, मैं क्या करना, उसकी ताबेदारी करता, उसकी फरमाबरदारी करता, उसकी बात सुनता है। चौथा तरीका, मलऊन जादूगर कुरान मजीद की किसी सूरत को हैज के खून से किसी नापाक चीज से लिखता है, नापाक चीज से लिखता है और फिर जिन्नों के पास जाकर मंत्र तंत्र करके जिन्नों को खुश करता है। अल्लाह नाराज होता है, फिर जिन्नात उसकी मदद करते हैं। पांचवा तरीका, जादूगर कुरान मजीद के सूरतों को या आयतों को उल्टा करके फिर उसमें शिरकिया कुछ तावीज़ात करता है मुख्तलिफ तरह के। अब देखे होंगे कि लकीर खींचता, लाइन खींचते घर बनाता है, खाना खाना बनाकर अजीब तरह की चीजें लिखते हैं। लगता है कि अरबी, लेकिन अरबी नहीं होती है, यानी उल्टा सीधा कर देते हैं वो। ऐसा करके शैतान खुश होता है। एक छठा तरीका, जादूगर एक खास सितारे के तुलू होने का इंतजार करता है। ये नुजूमियत की तरह है। जादूगर एक खास सितारे के तुलू होने का इंतजार करता है। जब ये तुलू हो जाता है तो जादूगर उससे मुखातिब होता है, उस सितारे को बात करता, वो कहता है। फिर जादू वाले विर्द पढ़ता है, जादुई जो तंत्र मंत्र है वो पढ़ते रहता है जिनमें कुफर और शिर्क मौजूद होता है। फिर चंद ऐसी हरकतें करता है उसके ख्याल के मुताबिक, इन हरकतों से इस सितारे की बरकत उस पर नाजिल होती है। समझता है कि इस सितारा सब कुछ करेगा। और आमतौर से अवाम में यह बात बहुत मशहूर है, फुला का स्टार बड़ा अच्छा था, हाँ बच गया, उसका स्टार बड़ा अच्छा था, उसका सितारा खराब चल रहा है। ये शिर्किया बात है, याद रखो। सितारा स्टार में तासीर मानना कुफरिया और शिरकिया काम है। सही मुस्लिम की हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चंद साहबा इकराम के साथ सफर में थे, एक जगह पर रात में पड़ाव डाले, रात में एक सितारा निकला और अल्लाह की मर्जी से रात में बारिश भी हुई। जमाने जाहिलियत से इनके पास यह तसव्वुर था, फुला सितारा अगर तुलू हो तो बारिश होगी। उस दिन वो सितारा तुलू हुआ। कुछ लोगों ने कहा मुतिरना बिनौइ कदा, फुला सितारे के तुलू होने की वजह से हम पर बारिश बरसाई गई, उस सितारे का कमाल है। और जो पक्के सच्चे मोमिन थे उन्होंने कहा कि नहीं, अल्लाह ताला ने बारिश बरसाई है। सुबह सवेरे अल्लाह ने नबी को बताया और अल्लाह ने कहा कि आज कुछ लोग सुबह सवेरे काफिर हो गए, कुछ लोग मोमिन रहे। जिन लोगों ने यह कहा कि फुला सितारे के तुलू होने की वजह से बारिश हुई वो काफिर हो गए हैं, और जिन्होंने कहा कि अल्लाह ने बारिश बरसाई वो मोमिन रहे। कितने मुसलमान हैं कहते आज घर से बाहर नहीं जाना, क्यों? महाफुला रात्रि है, नाम लेना मुनासिब नहीं है, हो सकता है किसी को हट होगा। महाफुला रात्रि है, आज अमावस्या पूर्णिमा है, बोलते नहीं बोलते मुसलमान खुद। और बाकायदा वो कहते हैं कि आज फुला है, आज फुला की तारीख, आज आषाढ़ है, फुला है तो ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, बिजनेस नहीं होगा, मंगल के दिन कोई अच्छा काम नहीं करना है, बिल्ली सामने से गुजर गई तो नहीं करना, फाख्ता कबूतर ने वो बोल दिया, चिपकली ने कह दिया तो ये होगा। जानवरों में, कुत्ते बिल्लियों में तुम लोग ढूंढ रहे हो। याद रखो ये सब बातें गलत है। फिर सितारे सैयारे देखकर, जो हाथ देखकर, लकीरों को देखकर तकदीर बताते हैं, कुफरिया काम है। नबी ने फरमाया जो एक बार किसी एस्ट्रोलॉजर के पास, नुजूमी और काहिन के पास चला गया, उसके 40 दिन की इबादतें कबूल नहीं होगी। चला गया तो कबूल नहीं होगी। और अगर जाकर उसकी बातों की तस्दीक कर लिया, नबी ने फरमाया उसने कुफर किया है, कुफर किया है।
कितना बड़ा गुनाह है। कितने मुसलमान अब देखोगे, हाँ तोता मैना लेके बैठा है, अब उसके बाद ताश के पत्ते निकाल के तकदीर बताता है। अरे इंसान, तुम अशरफुल मखलूकात हो, तुम तोते मैने के पास जा रहे हो तुम्हारी तकदीर मालूम करने के लिए। तुफ हो है फिर तुम्हारे ऊपर, अल्लाह ने तुम्हें अकल दिया, शऊर दिया है। खुद वो एस्ट्रोलॉजर वो तोता मैना लेके बैठा रहता है कोने में, दिन भर कोई कस्टमर उसको मिलता नहीं है। अगर उसको तकदीर के बारे में पता है, तोता मैना को पूछ ले कि भाई आज कौन सी गली में, कौन से सड़क में, कौन से पार्क के पास ज्यादा कस्टमर मिलेंगे, बता, मैं वहां चले जाता हूं। उतनी भी मेहनत करने की क्या जरूरत है भाई? घर बैठे बैठे तोते मैने को पूछ लो कि भाई कहां से कमाई के सोर्सेस हैं, या किसी के पासवर्ड क्या है, फला क्या है, अकाउंट के डिटेल्स क्या है, बता दो, यहां से मैं सब निकाल देता हूं। आज तो हैकर्स की कमी नहीं है। याद रखो, गैब का इल्म अगर अल्लाह ताला किसी और को देता, सारे दुनिया का निजाम दरहम बरहम हो गया होता। दुनिया का निजाम दरहम बरहम हो गया होता अगर गैब का इल्म अल्लाह ताला किसी को देता। अल्लाह ने अपने पास रखा, ये अल्लाह का करम है। तो एक खास सितारे के तुलू होने का इंतजार करके उस सितारों की परस्तिश, अब क्या होता, शैतान खुश होता, गैरुल्लाह की परस्तिश हो रही ना, शैतान मदद करता है। नॉर्थ इंडिया में एक नाम बहुत मशहूर है, वो है अख्तर। फुला अख्तर है। साउथ इंडिया में कम है, लेकिन यहां पर एक जुमला बोलते हैं, निकाह में बार बार सुने होंगे, फुला के दुख्तरे नेक अख्तर, है ना, फुला की दुख्तरे नेक अख्तर। अख्तर एक सितारे का नाम है, अख्तर एक सितारे का नाम है। अब दुख्तर के माने बेटी, नेक अख्तर, यानी उस सितारे की वजह से ये नेक बनी है, उस सितारे ने इसको नेक बनाया है, ये उस सितारे की नेक है। शिर्क है कि नहीं है? शिर्क है। इसलिए आप इस तरह के नाम मत रखो और दुख्तरे नेक अख्तर मत बोला करो। ऐसी बहुत सारी बातें। अल्लाह को हाजिर और नाजिर समझकर कहता हूं, अल्लाह हाजिर नहीं है, अल्लाह नाजिर है। अल्लाह को हाजिर समझ के कहना ये कुफरी अकीदा है, क्योंकि सही मुस्लिम की हदीस है, नबी ने इस लौंडी के ईमान का जायजा लेने के लिए सवाल किया, ऐन अल्लाह, अल्लाह कहाँ है? उसने आसमान की तरफ इशारा करके कहा, तब नबी ने कहा ये मोमिन है। जो अल्लाह को हर जगह मानता वो मोमिन नहीं, कुफरी अकीदा है। तो बहरहाल खुलासा कलाम यही हुआ कि जादूगर, जिन्नात को हाजिर करने के जो तरीके हैं, हर तरीके में कुफर है, शिर्क है। और जब शिर्क और कुफर कोई करता है जादूगर, अब शैतान उसकी मदद करता है। अब इसीलिए मैंने शुरू में भी बताया, अगर कोई कहता है मैं जिन्नात को कंट्रोल करता हूं, जिन्नात मेरे ताबे में है, जिन्नात मेरी बातें सुनते, मेरी मदद करते, याद रखो वह इंसान जरूर काफिर हुआ, मुशरिक हुआ है। वरना इंसान और शैतान की अज़ली दुश्मनी है। शैतान कभी किसी इंसान की मदद नहीं करेगा। हाँ, जो अच्छे जिन्नात है वो कर सकते हैं, गलत कामों में अगर कर रहे हैं तो याद रखो ये गलत काम इससे करवाया है, तब जाके ये मदद कर रहा है। दुआ कीजिए रब्बुल आलमीन से अल्लाह तबारक तआला हमें और आपको जादू जिन्नात के असरात से महफूज रखें, शिरकिया कुफरिया कामों से महफूज रखें। आमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।